Yes. What is written here? Tissue. टिश्यू. लेकिन इसको करने से पहले हमें एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ के बारे में बात करनी है जो हमें हर वक्त बायो नाम पढ़ते ही आ जाती है. सेल सेल सेल. व्हाट इज एग्जैक्टली सेल? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ये हमेशा पढ़ते चले आ रहे हैं. नाउ if cell is the structure and functional unit, what about tissue? The combination of, the collection of many cells together is called as tissue. लेकिन ऐसे ही थोड़ी कि बहुत सारी सेल्स इकट्ठी बनी है तो उनको टिश्यू कह दिया. नहीं. Group of cells which combine together to perform a particular function is called as tissue. Again I am repeating, a group of cells which combine together to perform a particular function is called as tissue. Today we are going to concentrate on plant tissue. Of course, living organism means plants and animals. Plant tissue. Let's see. Plant tissue. Plant tissue are divided into two categories. Meristematic tissue and permanent tissue. This is very important word, meristematic. Exactly, meristematic goes to growing, dividing in a developing stage. The tissue which are in the developing stage, which are in the growing stage, which are still division is going on, जिनकी cells में अभी division चल रहा है, उसे क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. और ये कहाँ होंगे? प्लांट की बॉडी की बात कर रहे हैं हम. कहाँ होंगे? एक्चुअली ये वहाँ होंगे जहाँ ग्रोथ की ज़रूरत है. लेट्स सी कैसे. ग्रोथ की ज़रूरत कहाँ होती है? पौधे को लंबा भी होना है, मोटा भी होना है ना, तो उसकी ब्रांचेस भी निकलनी है. तो इनकी पोजीशन के हिसाब से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की टाइप्स. लेट्स सी हाउ. मेरिस्टेमेटिक आर ऑफ फर्दर 3 टाइप. एपिकल, इंटरकैलरी एंड lateral. Meristematic, apical, intercalary, lateral. Okay. Now permanent as it is clear from the name. Permanent means जो परमानेंट चीज़ है, जो बन चुकी है. मतलब पौधा रेडी हो चुका है, प्लांट रेडी हो चुका है. मेरिस्टेमेटिक जो डिवाइड हो रहा था, ग्रो हो रहा था, उससे मेरिस्टेमेटिक. और जब वो ग्रोथ हो गई, जो बनना था बन गया, उसमें पूरी डिफ्रेंशिएशन हो गई. डिफ्रेंशिएशन मीन्स जिससे जो पार्ट बनना था वो बन चुका है, तब वो किस में चेंज हो जाता है? परमानेंट टिश्यू में. परमानेंट टिश्यू आर ऑफ फर्दर 2 टाइप. How many type? 2 type. Simple and complex. Simple and complex. The detail of these two we will do when we'll go in detail of permanent. Now these are further divided into many type. We'll do it later on. First let's see detail of meristematic tissue, their working, their position. Let's see how. Yes, meristematic tissue. The other name which we give it, dividing tissue. This is also given, dividing tissue. This name is also given to this tissue. Growing tissue, dividing tissue, this name mostly given to this kind of tissue. Now, how many types it was? It was apical. First, number 1, apical. Apical word goes from apex. Apex means tips, present on the tips. Root tip, shoot tip. Tips, root as well as and
एंड शूट. रूट एंड शूट टिप्स क्या करेगा? नेचुरली ऊपर और नीचे दोनों टिप्स के ऊपर प्रेजेंट है. क्या करेगा? इट हेल्प इन ग्रोइंग द लेंथ ऑफ द प्लांट, हाइट ऑफ द प्लांट. दिस इज अबाउट एपिकल टिश्यू. अब देखो सेकेंड वन, इंटरकैलरी. Intercalary, it is present on the joining parts. Joining part means in scientific term nodal region. Nodal region, nodes, nodes पे present है, joints पे present है. nodes क्या होते हैं? जहाँ से branches निकलती हैं, जहाँ से leaves निकलती हैं. ठीक है. Now the third one is lateral. Lateral which are present on sides. Girth of the plant, it increase the girth of the plant. ये कहाँ है? joints पे. Naturally it is present on the nodal region, that means in between growth increase करने के काम आता है. And what about sides? That means lateral meristematic. This is present on the sides, it increase the girth of the plant. That is in, if I talk in a layman language, तो ये plant की width बढ़ाने में काम आता है. देखो इस तरीके से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, क्या है ये, क्या है ये. डायग्राम की हेल्प से देखते हैं. देखो किस तरीके से, इससे क्लियर हो जाएगा अब तुम्हें. देखो कैसे. मान लो ये हमारा प्लांट है, ये प्लांट है, ये प्लांट की टिप है. टिप पे कौन सा होता है? अभी किया आपने एपिकल. और ये प्लांट का ज्वाइंट है जहाँ से ब्रांच निकल रही है. मान लो ये ब्रांच निकली, ये ब्रांच निकल रही है. ठीक है. तो यहाँ कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होगा? इंटरकैलरी. कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होगा? इंटरकैलरी. नाउ व्हाट अबाउट दिस, बताओ. अंडरस्टूड है? अभी क्या बताया था? लेटरल विच इज प्रेजेंट ऑन द साइड, it increase the girth. अब बच्चा it is very much clear from their position, their function, it is very much clear. Apical, it increase the height of the plant from root tip as well as on the shoot tip. Intercalary, it increase the length of the plant from the in between branching etc, from the leaves growth etc. Now lateral region, it increase the girth of the plant. And what was the specific feature of meristematic? ये हमेशा ध्यान रखना. कैसे बढ़ाता है, क्यों बढ़ाता है? बिकॉज इट इज़ इन डिवाइडिंग स्टेज. 1 से 2, 2 से 4 सेल्स बढ़ते चले जाते हैं और प्लांट की ग्रोथ जो है बढ़ती चली जाती है. दिस वॉज अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दैट इज डिवाइडिंग टिश्यू. अब हम जाते हैं दूसरे टिश्यू पे. कौन से वाले थे दूसरे? परमानेंट. परमानेंट की डिवीजन हमने पूरी नहीं की थी, थोड़ी सी की थी ना. कौन सी की थी? परमानेंट के कौन से 2 टाइप किए थे? वन वॉज सिंपल परमानेंट, द अदर वन इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट. सिंपल परमानेंट इज अगेन ऑफ 3 टाइप. पैरेन्काइमा, बेटा ये न्यू टर्म्स हैं, ये ध्यान रखना है. कॉलनकाइमा and sclerenchyma. Again I'm repeating, parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. Okay, complex are further of 2 type, xylem, phloem. Now why it is called simple and why it is called complex? It is called simple because all the cells of these 3 are of same kind. They are made up of same kind of cells, so they are called as simple permanent. इसीलिए simple कह दिया. They are made up of many kind of cells, so they are called as complex permanent tissue. अब अगर हम बात करें इन दोनों की, तो जाइलम में 4 तरीके की सेल्स हैं, फ्लोएम में भी 4 तरीके की सेल्स हैं, लेकिन इनमें सारी सेल्स एक जैसी हैं. तो ये क्या हो गए? सिंपल हो गए, क्योंकि सिंपल है स्टडी करना, एक ही तरीके की सेल्स हैं. और कॉम्प्लेक्स विच आर मेड अप ऑफ मैनी काइंड ऑफ सेल. ओके, अब देखते हैं आगे इनकी डिटेल, इनका स्ट्रक्चर.
पहले कौन से करेंगे हम? सिंपल परमानेंट टिश्यू. ठीक है, ध्यान से देखना आप. अभी हम किसकी बात करेंगे? आई एम रिपीटिंग. पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा. लेट्स सी. पैरेन्काइमा. पैरेन्काइमा, what is that? Thin membrane of the cells. Large gap in between. That means intercellular space is more. What do you mean by intercellular space? मतलब कि दो सेल्स के बीच में गैप ज़्यादा है. Intercellular space is more and they are thin membrane. Thin membrane. Okay. Now it is collenchyma. What about collenchyma? कहाँ होगा? The wall is thin membrane और thin wall because ये plant tissue है बेटा. Plant tissue में wall होती है, इनकी covering thin wall है. ये ध्यान रखना. Membrane wall collectively we have given it the name. It should be they are having thin wall, not membrane. I am correcting myself. It is thin wall. Now wall is thick due to deposition at the corner. कॉर्नर पे थिक हो जाती है, थोड़ी थोड़ी थिक हो जाती है. वॉल इज थिक एट द कॉर्नर. थोड़ी सी थिक हो गई. नेक्स्ट वन. इंटरसेलुलर स्पेस इज लेस. इंटरसेलुलर स्पेस इज लेस. ठीक है. पैरेन्काइमा, इंटरसेलुलर स्पेस इज मोर, इंटरसेलुलर स्पेस इज less are the main feature. And what about the function? Naturally it will fill the gap. It will just be filling organ. It will filling part in between space को fill करने के काम आता है. And collenchyma कहाँ होगा? joints पे होगा, branching पे, leaves जहाँ से arise होती हैं, ये collenchyma flexibility देने के काम आता है. ये collenchyma tissue का काम है. Now next one which is the last one which is very important is sclerenchyma. और ये हमारा जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्लांट का सपोर्टिंग टिश्यू जो है वो स्क्लेरेन्काइमा है. स्क्लेरेन्काइमा आपकी एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चन है. व्हाट इज द हस्क ऑफ कोकोनट मेड अप ऑफ? दैट इज स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू. मतलब कि इट हैज थिक वॉल. थिक वॉल. थिक वॉल व्हाई? ड्यू टू लिग्निन डिपोजिशन. लिग्निन डिपोजिशन ये केमिकल बहुत इंपॉर्टेंट है. लिग्निन डिपोजिशन की वजह से इसकी वॉल थिक हो जाती है. एंड फंक्शन क्या होगा? नेचुरली सपोर्टिंग. इसका भी सपोर्टिंग है बट इट गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी. पैरेन्काइमा का क्या फंक्शन था? इट फिल्स द गैप. इट इज अ फिलिंग टिश्यू. एंड व्हाट अबाउट दिस? इट इज सपोर्टिंग टिश्यू. प्लांट को सीधा खड़ा करने में जहाँ भी सपोर्ट चाहिए देयर स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू. जहाँ हार्डनेस है देयर स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू. थिक वॉल. व्हाई? बिकॉज ऑफ थिक वॉल, बिकॉज ऑफ लिग्निन डिपोजिशन. एंड व्हाट अबाउट द स्पेस? अरे इतनी वॉल थिक है तो स्पेस कहाँ बचेगा? इंटरसेलुलर. नो इंटरसेलुलर स्पेस. नो इंटरसेलुलर स्पेस. ठीक है. मेन आपको मैंने बता दिया. अब हम करते हैं इसका डायग्राम. पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा का जब डायग्राम करेंगे तब हमें एग्जैक्टली इसका डिफरेंस क्लियर हो जाएगा. पहला क्या लिखा था? देखो, थिन वॉल विद गैप. ऐसे ऐसे सेल्स हैं, बीच में गैप है. बीच में गैप है, इंटरसेलुलर स्पेस है, वॉल थिक है, ऐसे ऐसे सेल्स हैं. ठीक है. तो ये कैसा हो गया? पैरेन्काइमा टिश्यू हो गया. कॉलेन्काइमा टिश्यू जब बनाएंगे तो कैसे होगा? ऐसे ऐसे बनाते हैं एंड डिपोजिशन एट द कॉर्नर. इस तरीके से ये डिपोजिशन एट द कॉर्नर. नेचुरली बीच में गैप कम हो जाएगा. इंटरसेलुलर स्पेस इज लेस. दिस इज पैरेन्काइमा, दिस इज कॉलेन्काइमा. अगेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे? थिन वॉल, इंटरसेलुलर स्पेस इज मोर, फिलिंग और फिलिंग द बॉडी पार्ट्स. दैट वाज द फंक्शन. एंड व्हाट अबाउट दिस? थिक वॉल एट द कॉर्नर
not so thick, having intercellular space is less, and what was the function? Providing flexibility as well as the support. What about the last one, which is very very important? Last one, which may look here, it's a very thick wall. इतनी वॉल थिक होती है, बताओ किसकी वजह से? अभी बताया था किसकी वजह से, किसकी वजह से? सारे एरिया तो वॉल ही कवर कर लेती है, इसमें बॉडी तो बिल्कुल जो है पूरा एरिया, आप एनसीईआरटी की अगर बुक में देखो तो इट इज ऑलवेज कवर्ड लाइक दिस, इट्स अ सिंपल वैक्यूल इज देयर, कंप्लीट wall, it's all wall, complete like this. This is which kind of tissue? This is sclerenchyma tissue. And what about the function? It provide support. Sclerenchyma tissue, thick wall, lignin deposition without any intercellular space, and provide support. This was about simple permanent tissue. Now complex permanent tissue. Yes, now what we are left with? Complex permanent tissue, that will continue in the further lecture. What are the two tissues? Xylem and phloem. If you like it, then please give your comments. Okay, bye.